Good evening, students. Welcome to our YouTube channel IS Gurukul. In today's video, we are going to discuss about the current affairs that are relevant for our competitive examination, UPSC, state PCS, or other competitive exams. In this video and in this PDF specifically, we are going to discuss about the news that were there in the Hindu newspaper. We are going to analyze them, right? दोनों ही एस्पेक्ट ऑफ स्टूडेंट्स दोनों ही स्टूडेंट्स को टारगेट करेंगे whether they are of English medium or Hindi medium, but the PDF that I have created, it is in English medium only. So the link given below, you can download the PDF so you can revise it later. So as you can see, first topic deals with the demand for immediate restoration of Article 370 and 35A. What it is, why they are demanding its restoration, and the static portion that is relevant to it, we are going to discuss about it. Second is Jaishankar begins Singapore state visit. Why and what importance does it have, and what are the Asian countries? We will discuss it. Minority institution, that is Supreme Court has given its verdict on the Aligarh University. Why and what kind of minority institution it has, and other relevant aspects, we are going to discuss it thoroughly. And lastly, we have some short news, that is India Sri Lanka maritime security, and there is first Asian Buddhist summit, and all eyes on Baku climate finance goal. They can be asked in UPSC prelims or PCS examination directly, where they are being held or what are the consequences, why they are important, something like that, right? So let's begin our video. See, there is a demand in the Jammu Kashmir State Assembly after the election. There has been a ruckus prevailed in the Jammu and Kashmir Assembly for the third day on Friday, as they are protesting against, they are demanding the special provision. They wanted the restoration of Article 370, कि ऑलरेडी न्यूज़ में रह चुका है 2019 और उसके पहले, राइट. सो उसके बारे में थोड़ा सा जानेंगे, क्या है आर्टिकल 370, कैसे रिलेटेड है, जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट क्या है, राइट. सो क्या है कि अभी जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट जब पास हुआ तो जम्मू एंड कश्मीर बाइफरकेट कर दिया गया, ठीक है, दो यूनियन टेरिटरीज़ में. इट इज़ फर्स्ट टाइम जब एक स्टेट का स्टेटहुड हटा के उसको यूनियन टेरिटरी में कन्वर्ट किया जा रहा है. जनरली रिवर्स होता है, यूनियन टेरिटरी स्टेट में कन्वर्ट की जाती है. डिमोशन फर्स्ट टाइम हुआ है जहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख दो हिस्सों में डिवाइड किया गया है. आई होप आप लोग ऑलरेडी अवेयर होंगे, ये नई न्यूज़ नहीं है पर दोबारा से न्यूज़ में है, सो वी नीड टू रिवाइज इट. उसके कुछ बेसिक प्रोविजंस थे जब ये पास हुआ था 2019 में, कि जो लेफ्टिनेंट गवर्नर होगा, पहले गवर्नर होता था, जो लेफ्टिनेंट गवर्नर अब रिप्लेस कर देगा गवर्नर को, जो एडमिनिस्ट्रेटर होगा, प्रेसिडेंट जिसके थ्रू एडमिनिस्टर करेगा यूनियन टेरिटरी को. लेजिस्लेटिव असेंबली में सीट्स डिसाइड की गई थी 107, 24 वेकेंट छोड़ी गई क्योंकि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में वो लाई कर रहे हैं. गवर्नर can nominate 2 members to give representation to the women. There is a reservation of scheduled caste and scheduled tribes. ये सब पहले provisions नहीं थे, जो अभी ये सब ऑर्गेनाइजेशन एक्ट के बाद 2019 वाले उसके बाद ऐड हुए थे. असेंबली विल हैव अ टर्म ऑफ 5 years, राइट. पहले 6 years थे. ये सब ना UPSC सब वर्ड प्ले करता है इन सब चीज़ों से, कि 5 years 6 years, पहले 6 years था जो कि अब 5 years हो गया है नॉमिनेशन की. पहले कौन से थे जो अभी चेंज हो गए हैं इस तरीके के, ठीक है. काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होंगे 10% टोटल मेंबर्स. ये सब आपको याद करने वाली चीज़ें हैं. कॉमन हाई कोर्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख, ये सारे प्रोविजंस पास हुए थे 2019 जम्मू एंड कश्मीर एक्ट के थ्रू. आर्टिकल 239A जो एप्लीकेबल है पुडुचेरी में, वही एप्लीकेबल होगा जम्मू एंड कश्मीर है. और जो डिलिमिटेशन होगा वो बेसिस होगा 2011 सेंसस के. उसके बाद सेंसस हुआ नहीं है हमारा, विच इज़ कंसर्निंग, बट लेट्स नॉट डिबेट्स ऑन द टॉपिक. अब इस सब को समझने के लिए आर्टिकल 3 हमें समझना ज़रूरी है, जो इसके पार्ट को जस्टिफाई करता है, राइट. आर्टिकल 3 को समझना ज़रूरी है क्योंकि ये पार्लियामेंट की पावर्स को जस्टिफाई करता है, जहाँ वो
बना सकती हैं, किसी स्टेट को मतलब रीऑर्गेनाइज कर सकती हैं, उनका नाम बदल सकती हैं, उनकी बाउंड्रीज को ऑल्टर कर सकती हैं, एरिया डिमिनिश कर सकती हैं, इंक्रीज कर सकती हैं, नेम बदल सकती हैं। तो ऑलरेडी पार्लियामेंट के पास ये पावर है आर्टिकल 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में, जहाँ वो ये सब चीज़ें कर सकती है। कैन फॉर्म अ न्यू स्टेट बाय सेपरेशन ऑफ अ टेरिटरी फ्रॉम एनी स्टेट और बाय यूनाइटिंग टू और मोर स्टेट और अ पार्ट ऑफ स्टेट बाय यूनाइटिंग टेरिटरी और टू पार्ट ऑफ एनी स्टेट, राइट। एज आई टोल्ड यू कि किसी भी स्टेट का एरिया इंक्रीज कर सकती है, डिमिनिश कर सकती है, बाउंड्रीज ऑल्टर कर सकती है, नाम ऑल्टर कर सकती है। बट इसमें भी दो कंडीशन हैं इसमें भी, कि ये सब करते समय भी जो इस तरीके का बिल जब भी पास होगा तो पार्लियामेंट को प्रायर परमिशन चाहिए होगी, रिकमेंडेशन चाहिए होगा, किसका? प्रेसिडेंट का। और सेकंड कंडीशन क्या है कि जब भी ये प्रेसिडेंट ये रिकमेंड करेगा तो ये ना स्टेट लेजिस्लेचर जिसका ये काम हो रहा है, मान लीजिए कि अगर उत्तर प्रदेश के स्टेट लेजिस्लेचर से कंसर्न है तो उससे पहले आपस में व्यूज को कंसर्न किया जाएगा। ऐसे नहीं कि प्रेसिडेंट ने कहा, पार्लियामेंट ने कहा और स्टेट को इन्फॉर्म तक नहीं किया गया, राइट। सो ये दो प्री रिक्विजिट हैं ये आर्टिकल में पावर पार्लियामेंट जब एक्सरसाइज करती है उस टाइम पे। आर्टिकल 370 के कुछ प्रोविजंस थे, जहाँ पे क्या था आर्टिकल 370 जब हटा था कि आर्टिकल 370 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गिव स्पेशल स्टेटस टू जम्मू एंड कश्मीर। स्पेशल स्टेटस क्या था ये स्पेशल स्टेटस? जहाँ पे उनके पास अपना एक सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन था, फ्लैग था, ऑटोनॉमी था इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन पे। ये पार्ट 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूडेड था। ये सब छोटे छोटे जो डेटा और फैक्ट्स हैं ये इंपॉर्टेंट हैं क्वेश्चंस के लिए। बट इट वॉज टेम्परेरी, ट्रांजिशनल एंड स्पेशल प्रोविजन। ये ऑलरेडी एडेड था इसमें। इसके प्रोविजंस थे क्या कि इट एग्जेम्प्टेड द स्टेट फ्रॉम कंप्लीट एप्लीकेबिलिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, राइट। पूरे तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन हमारा अप्लाई नहीं होता था। सेंट्रल लेजिस्लेटिव पावर ऑफ द स्टेट्स वर लिमिटेड। कॉन्स्टिट्यूशन पावर ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट वर एक्सटेंडेड टू द कॉन्करेंस ऑफ द स्टेट से पहले कंसल्ट करना पड़ता था, उसकी मर्जी से ही हम कोई लॉ या कोई किसी तरीके की चीज़ को अप्लाई कर सकते थे। बहुत तरीके की रिस्ट्रिक्शंस थी। अपना कॉन्स्टिट्यूशन था, जैसे कि ऑलरेडी डिस्कस्ड है कि ऑलरेडी अपना जिसका कॉन्स्टिट्यूशन है उसके मतलब उस सारी प्रोविजंस आर्टिकल 370 में प्रोवाइड किए गए थे। आर्टिकल 35 ए था जहाँ पे वो प्रिविलेज थे परमानेंट रेसिडेंस के विद रिगार्ड टू इमूवेबल प्रॉपर्टी सेटलमेंट इन स्टेट एंड एम्प्लॉयमेंट। स्टेट एम्प्लॉयमेंट इमूवेबल प्रॉपर्टी को लेके जितने भी राइट्स और पावर्स थी वो स्टेट लेजिस्लेचर के पास ही कॉन्स्टिट्यूशन में एडेड की गई थी। तो ये दोनों प्रोविजंस डिलीट कर दिए गए थे, हटा दिए गए थे। अच्छा, इसको समझने के टाइम पे ना मुझे लगता है कि हम लोगों को एक आर्टिकल है आर्टिकल 367, इसको पढ़ना चाहिए। आर्टिकल 367 क्या है ना, इज द इंटरप्रिटेशन क्लॉज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इट इंटरप्रेट्स, राइट। आर्टिकल 367 प्रोवाइड्स वेरियस गाइडलाइंस अबाउट हाउ द कॉन्स्टिट्यूशन में बी इंटरप्रेट, है ना। वो गाइडलाइंस की कैसे होगा। तो वाइल मतलब जो जम्मू एंड कश्मीर वाला स्पेशली जो प्रोविज़न था जहाँ पे मतलब प्रेसिडेंशियल ऑर्डर से किसी तरीके का चेंज होता था, राइट। तो मतलब जैसे प्रेसिडेंशियल ऑर्डर मेक्स अ चेंज टू अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, फॉर एग्जाम्पल इन द आर्टिकल 373 मस्ट बी रेड एज लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट। इसका क्या मतलब हुआ? मतलब कि व्हेन लेजिस्लेटिव असेंबली डिसॉल्व हो जाए, जब भी प्रेसिडेंट रूल में आ जाए, उस जम्मू कश्मीर का जब भी जैसे डिसॉल्व हुआ प्रेसिडेंट रूल में आया, द पावर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली देन गो टू द यूनियन पार्लियामेंट, राइट। जब मतलब ये आपको समझने की ज़रूरत है कि ये अगर लेजिस्लेटिव असेंबली डिसॉल्व होती है और प्रेसिडेंट रूल में जाता है तो ऑलरेडी यूनियन पार्लियामेंट के पास ही पावर चली जाएगी। सो पार्लियामेंट रिकमेंडेशन फॉर एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 इज टेक्निकली रिक्वायर्ड, है ना। जो बहुत सारे आर्ग्यूमेंट थे कि ज़रूरी था नहीं था ये वो, पर अगर प्रेसिडेंट रूल में जम्मू एंड कश्मीर जा रहे हैं तो वो ऑटोमेटिकली यूनियन पार्लियामेंट के पास ही पावर जा रही है। तो वो एब्रोगेशन 370 का टेक्निकली ज़रूरी था अभी, राइट। जिसको रेजोल्यूशन जिसका पास हुआ था अगस्त 2019 में। सो आर्टिकल 367 के बारे में भी पढ़ना चाहिए आप लोगों को, राइट। ये फर्स्ट न्यूज़ है। सेकेंड न्यूज़ इज रिलेटेड टू एशियन कंट्रीज एंड व्हाई वी आर एक्टिंग, यू नो, you must have heard a term called Act East Policy. पहले था लुक ईस्ट पॉलिसी, अभी है एक्ट ईस्ट पॉलिसी, राइट। सो ये क्या है? मतलब अभी क्या हुआ कि जयशंकर
हैज़ विजिटेड टू सिंगापुर और बायलैटरल पार्टनरशिप पर वर्क कर रहे हैं, इंडस्ट्रियल पार्क, सेमीकंडक्टर इनोवेशंस, कैसे मतलब क्या होगा फ्यूचर को लेके. तो वाई वी आर सो मच इन्वॉल्व इन कंसर्न विद द एक्ट ईस्ट पॉलिसी, व्हाट इज एक्ट ईस्ट पॉलिसी, व्हाट आर द एशियन कंट्रीज, राइट, वी नीड टू डिस्कस अबाउट इट. एशियन कंट्रीज क्या है ना, मतलब ASEAN, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस. ये कौन कौन सी कंट्रीज हैं? इंडोनेशिया, सिंगापुर, फिलीपींस, मलेशिया, ब्रूनी, थाईलैंड, कंबोडिया. आई हैव ऑलरेडी मेंशन देम. सो ये सब PDF में मेंशनड है कि ये बेसिकली ना याद करने वाली चीज़ें हैं कि इन सब कंट्रीज़ ने मिला के एक एसोसिएशन फॉर्म किया था जिसका नाम एशियन था, द एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन. अब एक्ट ईस्ट पॉलिसी क्या है ना कि इंडिया की स्ट्रैटेजिक इनिशिएटिव है टू स्ट्रेंथन द इकोनॉमिक, cultural and strategic ties with the Southeast Asia, particularly with the Asian region. इनकी हिस्ट्री क्या है कि इंडिया लुक ईस्ट पॉलिसी थी, जैसा कि मैंने कहा कि लुक ईस्ट पॉलिसी एक्ट ईस्ट पॉलिसी बन गई, लॉन्च हुई थी लुक ईस्ट पॉलिसी के फॉर्म में. अब नाउ वी आर एक्टिंग ऑन इट, राइट. इसके ऑब्जेक्टिव क्या है कि मतलब जो इकोनॉमिक टाइज बेटर हो पाए, कनेक्टिविटी बेटर हो पाए, वी शेयर सम काइंड ऑफ टूरिज्म एंड कल्चरल एक्सचेंज हो पाए, चाइना का जो ग्रोइंग इन्फ्लुएंस है इस रीजन में उसको बैलेंस कर पाए, काउंटर कर पाए. तो ये इसके लिए हमारे जो रिलेशंस हैं वो एशियन ईस्ट पॉलिसी के लिए इन सब कंट्रीज़ के साथ बहुत ज़रूरी है. तो इनके इम्पैक्ट भी रहे हैं, जैसे एशियन कंट्रीज़ के साथ जो हमारा ट्रेड था वो 44 बिलियन था 2011 में, जो अब 76 बिलियन हो गया था 2020 में, राइट. सो आप देख पा रहे हो कि इतना 70-80% का हाइक है. इनहेंस कनेक्टिविटी, ये सब आपके ना मेंस के आंसर राइटिंग और इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जहां आप डेटा को, फैक्ट को यूज़ कर सकते हो अपने आंसर को इनरिच करने के लिए, स्ट्रॉन्ग करने के लिए. द एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन इज अ रीजनल इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन कंप्राइजिंग 10 साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज. एज आई टोल्ड यू ऑलरेडी कि क्या है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन. ऑब्जेक्टिव इनका ये है इकोनॉमिक ग्रोथ, कोऑपरेशन, डेवलपमेंट. इनके ये की कुछ एरियाज़ हैं जिन पे इन्होंने वर्क किया हुआ है: एशियन फ्री ट्रेड एरिया, एशियन सिंगल विंडो टूरिज्म एग्रीमेंट, ह्यूमन राइट डिक्लेरेशन. ये सब आपकी आंसर राइटिंग में बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है. दैट विल हेल्प यू इवेंचुअली व्हेन यू आर राइटिंग एन आंसर ऑन एशियन कंट्रीज और लुक ईस्ट पॉलिसी और एक्ट ईस्ट पॉलिसी. तो आपके पास एक कुछ कीवर्ड्स, कुछ की हाईलाइट्स, ऑब्जेक्टिव, इम्पैक्ट, हिस्ट्री, इस तरीके से ही आप अपने आंसर को फॉर्म करेंगे जब भी लिखेंगे कि हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव आपको पता होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव पता होना चाहिए, उसका इम्पैक्ट पता होना चाहिए, राइट. कुछ की पार्टनरशिप्स हैं इनकी जहाँ पे ASEAN+3 चाइना, जापान एंड साउथ कोरिया है. ये इस तरीके के प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन बन सकते हैं कि ASEAN+3 और ASEAN+6 कंट्रीज़ में कौन कौन सी हैं, कौन सी नहीं है. ASEAN+3 कंट्रीज़ में कौन सी कंट्रीज़ हैं तो आपको पता होना चाहिए. ASEAN+6 में कौन सी कंट्रीज़ हैं, राइट. Third news is dealing with the Supreme Court overrules 1967 verdict refrains from deciding whether Aligarh Muslim University is a minority institution. डिस्प्यूट चल रहा था कि माइनॉरिटी है नहीं है, इंस्टीट्यूशन है नहीं है. तो अभी 7 जज बेंच ऑफ द सुप्रीम कोर्ट हेडेड बाय DY चंद्रचूड़, मेजोरिटी ऑफ 4-3 रेशियो, ओवर रूल्ड अ 1967 Constitution bench decision which held that a minority community cannot claim to have established an educational institution if it is created by statute. तो ये जो जजमेंट था उसको ओवररूल कर दिया गया है सुप्रीम कोर्ट के 4-3 रेशियो के जजमेंट से. जो माइनॉरिटी स्टेटस है EMU का, वो कॉलेज स्टैब्लिश होता है 1875 में, रिस्टोर्ड बाय द पार्लियामेंट थ्रू द EMU अमेंडमेंट एक्ट 1981 सॉरी. इन January 2006 the Allahabad High Court however struck down the provision of 1981 law, right. So in the majority opinion, Chief Justice Chandrachud observed that a minority institution are established with the goal to preserve the cultural fabric of the country. See, he has said the regulation of minority institution is permissible but it must not infringe on the minority character of the institution. आप जब भी अपने आंसर को मार्क करेंगे या जब भी अपने आंसर राइटिंग में, तो आप ना यूज़ करोगे इन सब स्टेटमेंट्स को जो चीफ जस्टिस ने कहा है या हमारे प्राइम मिनिस्टर ने कहा है, किसी इम्पॉर्टेंट लीडर ने हमारे कोई स्टेटमेंट पास किया है. स्पेशली सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं फॉर द आंसर राइटिंग, राइट.
सो अब ये माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन क्या होते हैं, आर्टिकल 30 क्या है, आर्टिकल 29 क्या है, इसके बारे में एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन हम देख लेते हैं. Article 29 defines the protection of interest of minority, equality of opportunity, prevent discrimination. No citizen shall be denied admission to any educational institution maintained by the state or receiving aid out of state fund on the ground of religion, race, caste or language. मतलब अगर आप किसी भी इंस्टीट्यूशन में एडमिशन लेने जाते हो और वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है जो स्टेट के द्वारा मेंटेन किया जा रहा है या एड ले रहा है या किसी भी तरीके का फंड से स्टेट से फंडेड है, तो वो आपको एडमिशन डिनाई नहीं कर सकता ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट और लैंग्वेज. आर्टिकल 29 grants protection, typo error, grants protection to both religious minorities as well as linguistic minorities. This is very important. आर्टिकल 29 इन दोनों के बारे में बात करता है. Article 30 on the other hand grants the following rights to the minorities, whether religious or linguistic. All minorities shall have the right to establish and administer the educational institute of their choice. सारे minorities जो हैं वो अपने rights establish कर सकते हैं, administer कर सकते हैं educational institution को जैसा भी वो चाहें. The compensation amount fixed by the state for the compulsory acquisition of any property of minority education institute shall not restrict or abrogate the right guaranteed to them. ये प्रोविज़न ये अमेंडमेंट 44 से ऐड किया गया था. ये इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से पूछा जा सकता है, इस बार न्यूज़ में भी है तो आने के चांसेस और ज़्यादा हैं. राइट. द स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी एजुकेशन इंस्टीट्यूट मैनेज बाय द माइनॉरिटी. We already know that. There is a difference between the Article 29 and Article 30. What it is? कि protection under the Article 30 is confined only to the minorities and does not extend to any section of the citizens. Right? तो Article 30 केवल minorities पे ही फोकस करता है और किसी सेक्शन ऑफ सिटीजन को नहीं. अच्छा, माइनॉरिटीज डिफाइंड कहीं भी नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में, हमारे मेंशन ज़रूर है पर डिफाइंड नहीं है. रिमेंबर दैट, नॉट डिफाइंड है ना, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइंड है माइनॉरिटीज वर्ड की नहीं, तो डिफाइंड नहीं है बट मेंशन्ड है. On the other hand, Supreme Court said that the scope of Article 29 is not necessarily restricted to minorities only. जो आर्टिकल 29 का स्कोप है ना वो केवल माइनॉरिटीज तक के लिए रिस्ट्रिक्टेड नहीं है. सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द आर्टिकल 29 एंड आर्टिकल 30. माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूट कितने तरह के होते हैं? 3 टाइप के, जो एक एड और रिकॉग्निशन ले रहे हैं स्टेट से, एक जो केवल रिकॉग्निशन ले रहे हैं, एड नहीं ले रहे हैं, और तीसरी जो ना रिकॉग्निशन ले रहे हैं ना एड ले रहे हैं. राइट. ये कुछ जजमेंट हैं सुप्रीम कोर्ट के, कोर्ट के कुछ जजमेंट हैं जहाँ पे आपको आंसर राइटिंग में हेल्प कर सकते हैं या आपसे मैच द फॉलोइंग में प्रीलिम्स में पूछ सकते हैं कि ये जो केस है ये किससे रिलेटेड है. तो एक TMA पाई फाउंडेशन वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका का है जहाँ पे माइनॉरिटी एजुकेशन इस्टेब्लिश कर सकता है इंस्टीट्यूशन को. इसके बारे में है PA इनामदार वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र है जो क्लैरिफाई करता है माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन को जो रिजर्वेशन से एग्जम्पशन है. और ये मलनकारा सेरेन कैथोलिक कॉलेज केस 2006 जो सुप्रीम कोर्ट ने समराइज किया था कि जनरल प्रिंसिपल्स क्या हैं एक माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन को रन करने के, एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड, उनका एस्टैब्लिशमेंट से रिलेटेड कुछ ग्राउंड रूल्स कि कौन कैसे हायर कर सकते हैं, कौन सा स्टाफ, कौन सा क्या, तो उसके रिलेटेड रूल्स क्या है वो सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट में डिफाइन किया था. सो दिस इज अबाउट द माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन एंड सुप्रीम कोर्ट जजमेंट दैट व्हाट इट हैज सेड. अब ये कुछ शॉर्ट न्यूज़ हैं. शॉर्ट न्यूज़ आर कि इंडिया श्रीलंका ऑफिसर्स आर डिस्कसिंग मैरीटाइम सिक्योरिटी सेफ्टी ऑफ फिशरमैन इन द पाक बे. मीटिंग हुई है कोस्ट गार्ड के टाइम पे, जो आज चल भी रहा है कि कोस्ट गार्ड हमारे जो फिशरमैन हैं उनकी सिक्योरिटी को लेके पोचर्स से और उनसे कि वो क्या है, किससे रिलेटेड है. तो और अभी ये इम्पोर्टेंट है कि SLNS विजय भरू से इन द पाक बे, ये बाउंड्री लाइन है. ये कुछ कीवर्ड्स हैं जो प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट है. आप शॉर्ट न्यूज़ को इस तरीके से देख सकते हैं. एशियन बुद्धिस्ट समिट हुई है, फर्स्ट है ये, इससे पहले नहीं हुई है कोई. इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने इसको ऑर्गेनाइज किया है अलॉन्ग विद द कोलैबोरेशन विद इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कॉन्फेडरेशन, जिसका थीम है रोल ऑफ बुद्धा
द मा इन दी स्ट्रेथनिंग एशिया। इस तरीके के क्वेश्चन आपको प्रीलिम्स में मिल सकते हैं कि थीम क्या है, थीम के नाम दे देंगे, थीम आपसे पूछ लेंगे कि ये थीम है या वो थीम है। इस तरीके के क्वेश्चन आए भी हैं जहाँ पे वो ओलंपिक्स की थीम पूछ ली गई थी। तो इस तरीके से थीम पूछी जा सकती है इस तरीके की समिट्स की, जहाँ पे आपसे पूछा जाएगा थीम क्या है, किस मिनिस्ट्री ने ऑर्गेनाइज़ की थी, आपसे कहा सकता है मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स ने ऑर्गेनाइज़ की थी कि कल्चरल ने। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपके प्रीलिम्स में बन सकते हैं। इससे फर्दर आप इसको मेंस में इंक्लूड कर सकते हैं जब भी कोई कल्चरल रिलेटेड या बुद्धिस्ट रिलेटेड या उसको फ्यूचर फॉर वे फॉरवर्ड के फॉर्म में कोई आंसर लिख रहे हो, जहाँ पे कैसे कल्चरल टाइज हेल्प कर सकते हैं पीस में और इंटरनेशनल कोऑपरेशन में, लिटरेचर, राइट। ये इस तरीके के क्वेश्चंस बनते हैं इस शॉर्ट न्यूज़ से। थर्ड इज़ दी ऑल आइज ऑन बाकू। बाकू इज़ एन एरिया इन अज़रबैजान। अभी न्यूज़ में भी था वो कॉन्फ्लिक्ट की वजह से। तो यहाँ पे COP29 की मीटिंग होने वाली है रिगार्डिंग दी क्लाइमेट गोल्स एंड नीड टू प्रायोरिटाइज दी डेवलपिंग कंट्रीज़। आर्टिकल 9 ये है कि ये कहाँ पे होगा, बाकू है कहाँ पे, और ये फाइनल जो ये वाली मीटिंग है न्यू कलेक्टिव क्वालिफाइड गोल्स की, ये कहाँ पे हेल्ड होने वाली है। तो इस तरीके के डायरेक्ट क्वेश्चंस प्रीलिम्स से रिलेटेड पूछे जा सकते हैं, चाहे एशियन समिट के हों, चाहे उनकी थीम से रिलेटेड हो, चाहे पूछा जा सकता हो कि विजय बाहुन पार्क पे से रिलेटेड हो। तो ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकते हैं। बाकी इसमें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट क्वेश्चन, चाहे वो जजमेंट से रिलेटेड हो, आर्टिकल 29-30 से रिलेटेड हो, माइन्यूट कॉन्सेप्ट बेसिस हो, आंसर राइटिंग में आपको इंक्लूड करना हो, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को कोट करना हो, इस तरीके के क्वेश्चंस डायरेक्टली और इनडायरेक्टली पूछे जा सकते हैं। सो ये आज द हिंदू न्यूज़पेपर का एनालिसिस है, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट न्यूज़ जो हैं उसको ढूंढ के उनको क्लब करके उनके स्टार्टिंग पोर्शन के साथ क्रिएट की गई हैं। आई होप यू लाइक द वीडियो। एनी सजेशंस विल बी वेलकम्ड और थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।